آج میں جناتا غلام قسط نمبر 22 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمہارے اندر عصبیت کا زہر بھرا ہوا ہے ریاض شاہ، اپنا کرود ختم کر دے۔ کوئی بھی روحانی عامل کرود کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹہلی ولی سرکار شاہ صاحب کو کافی دیر تک سرزنش بھی کرتے رہے اور پھر انہیں ہدایات بھی دیتے رہے۔ میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ یوں ہی خاصا وقت بیت گیا تو مجھے احساس ہوا جیسے میں ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھا ہوا۔ انہوں نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ خاصی دیر بعد جب ٹہلی والی سرکار نے مجھے مخاطب کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری موجودگی سے لاتعلق نہیں تھے۔ کہنے لگے، میاں، یہ اپنے شاہ صاحب کے بارے میں تمہارے جو خیالات ہیں غلط نہیں ہیں۔ میں نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا جو مجھے نظریں ملانے کے بجائے بابا جی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ سرکار، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے ٹہلی والی سرکار سے پوچھا۔ اگر شاہ صاحب جیسے لوگ معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں تو پھر کس کا اعتبار کیا جائے؟ نیکی اور بدی میں تمیز کیسے کی جائے؟ معاف کیجیے گا سرکار، یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ ہم جیسے لوگ جو روحانیت کے پرستار ہیں، انہیں کیا معلوم کہ وہ جنہیں روحانیت کی ایک بہت بڑے درجے پر فائز شخصیت سمجھ رہے ہیں، در حقیقت وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ جناب، یہ تو گمراہی ہے، گمراہی۔ اس کا اللہ کے دیے ہوئے علوم سے کیا تعلق؟ اور پھر سرکار، میں نے اپنا سر تھام لیا اور میرا لہجہ بدل گیا۔ میرے اندر کوئی شے کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی۔ سرکار، آپ جیسے لوگ، بابا جی جیسی ہستیاں، جب ایسے لوگوں کے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہوں تو انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ تم ٹھیک کہتے ہو۔ ہمارا المیہ ہی یہی ہے کہ بہت سے لوگ نیکی اور پارسائی کے فرقے میں گمراہی اور گندگی کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹہلی والی سرکار کہنے لگے، دیکھا تم نے ریاض شاہ، کتنا دکھ پہنچا ہے اس کو۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ گمراہی کے راستے سے واپس لوٹ آؤ۔ آدھا تتر آدھا بٹیر بننے والے سلوک کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ریاض شاہ دوبارہ ان کے قدموں میں گر گئے اور بولے، مجھے معاف کر دیں سرکار، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ اس وقت سحری کا وقت ہو رہا تھا۔ ٹہلی والی سرکار نے ہمیں واپس جانے کے لیے کہا۔ میں جب اٹھنے لگا تو وہ بولے، افسوس میاں، ہم تمہیں وہ تحفہ نہیں دے سکے جس کی تمنا تم رکھتے ہو۔ افسوس، صدے افسوس۔ ہم امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتے۔ پرسوں زلیخا کی شادی ہے اور ہم بھی اس میں شرکت کریں گے۔ زلیخا کا نام سن کر میرے اندر ٹوٹی ہوئی کرچیاں اکٹھی ہو کر میرے دل کے راستوں پر قابض ہو گئیں۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور پورے بدن پر ریشہ سا طاری ہو گیا۔ حوصلہ رکھو، اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر تحفہ عطا فرمائیں گے۔ تمہیں ایک محبت کرنے والی بیوی ملے گی میاں، اور تمہیں یہ سب بھول جائے گا۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور اللہ تجھے بچے عطا کرے گا تو تمہیں ہماری یاد ستانے لگے گی۔ ٹہلی والی سرکار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ریشہ زدہ بدن میں سکون سا آ گیا۔ ہم تمہیں ایک بہت ہی عمدہ وظیفہ دیں گے، تم اسے پڑھتے رہنا، تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں گی اور تم ہر آزمائش میں سے سرخرو ہو کر نکلو گے۔ ٹہلی والی سرکار نے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی ہدایت کی اور مجھے اسم اعظم عطا کیا۔ یہ پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کہیں بھی، سفر میں، خضر میں، اگر تم اپنا اسم اعظم پڑھتے رہو گے تو کبھی مار نہیں کھاؤ گے۔ تمہارے اوپر معمور 20 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، تم ان کی روحانی چادر میں محفوظ رہو گے۔ اور پھر کبھی اگر تمہارے دل میں آئے تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ٹہلی والی سرکار نے مجھے دوسرا وظیفہ دیا اور اس کو پڑھنے کی ہدایات دے کر بولے، دیکھو یہ بابا جی اوپر، ہماری زمین سے 200 کلومیٹر اوپر ان کی بستیاں ہیں، یہ زمینوں پر بھی آباد ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمہاری بلند پروازی میں اضافہ ہوگا اور جب تم چاہو گے تمہیں نیک جنات کا تعاون حاصل ہوگا۔ مگر میرے بچے، پاکیزگی اور پارسائی کا ہمیشہ خیال رکھنا، شہوانی خیالات کے زیر اثر آ کر کبھی ان وظائف کا ورد نہ کرنا، ورنہ بدکار جنات تمہاری قربت میں آ جائیں گے اور تم ساری عمر ان کے ہاتھوں ذلت اٹھاتے رہو گے۔ اور ہاں، کل رات میرے پاس آنا،
मुझे तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करनी हैं और तुम्हें तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब भी देने हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक ऐसी फरहत आमेज मुस्कुराहट जो दूसरों के दिलों में असर करके इन्हें अपना असीर बनाती है। अल्लाह हाफिज। टाहली वाली सरकार ने हमें कब्रिस्तान से अलविदा किया और हम सहरी के तारे के साथ चलते चलते मलकवाल वापस पहुंच गए। रास्ते में एक भी कुत्ता नजर नहीं आया। शाह साहब ने बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता कभी सहलाते और कभी गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते रहे। मैं इनकी कैफियत समझ रहा था। इनका रवैया बिल्कुल उस शख्स की तरह था जो अपने अफसर के कमरे से जाकर झिड़कियां खाता है, मगर बाहर आते ही ऐसा जाहिर करता है जैसे उसके अफसर ने इसको बहुत ज्यादा शाबाश दी है। लेकिन जब उस शख्स की दरगत कोई दूसरा शख्स लेता है तो उसके सामने बेचारा बन जाता है, मगर दूसरों पर फिर भी अपनी असलियत जाहिर नहीं होने देता। मेरा अगले रोज पेपर था। हवेली पहुंचकर मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर सो ना सका। मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए वुजू करने के लिए बाहर बागीचे के पास बने हुए गुसल खाने में जाने लगा तो मुझसे पहले शाह साहब वहां मौजूद थे। वो वुजू कर नमाज पढ़ने की तैयारियां कर रहे थे। मैंने भी वुजू कर लिया तो इन्हें कहा कि हम दोनों बाजुमात नमाज पढ़ते हैं। हम दोनों बागीचे में जाए नमाज बिछाकर खड़े होने लगे तो मार मुझे ख्याल आया तो मैंने कहा, शाह साहब बाबा जी कहाँ हैं? वो अंदर हैं। सरकार से कहें ना कि हमारी इमामत करा दें। मैंने कहा, वो नेक और पारसा जिन्नात में से हैं और फिर सरकार की उम्र भी तो 1400 साल है। शायद मियाँ ऐसा नहीं हो सकता। जिन्नात मुसलमान और इबादत गुजार भी हों तो फिर भी हम इनकी इमामत में नमाज अदा नहीं कर सकते। अलबत्ता जिन्नात इंसानों की इमामत में नमाज पढ़ सकते हैं। तो फिर इन्हें कहें कि हमारे साथ आकर नमाज पढ़ लें। मैंने पुर इश्तियाक लहजे में कहा, आओ हम और तुम नमाज पढ़ लेते हैं। वो अपनी इबादत कर चुकी हैं। इस वक्त वो इस्तराहत फरमा रहे हैं। शाह साहब ने कहा और हम दोनों ने बागीचे में नमाज फजर अदा की। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। शाह साहब ने पुरखलूस अंदाज में दुआ फरमाई। इनका रवैया अब तब्दील हो गया था। टाहली वाली सरकार के सरजरिश ने इन्हें सिराते मुस्तकीम के राह पर डाल दिया था और लगता था कि अब वो कभी सिफली इल्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की और फिर मुझे अपने साथ मेहमान खाने में ले गए। कमरे में गहरे सबज रंग का जीरो का बल्ब रोशन था। उनके बिस्तर पर बाबा जी सरकार दराज थे। बाहर की निस्बत अंदर खासी गरमाइश थी। मुझे अंदर आते हुए देखकर बाबा जी सरकार के बदन में जुम्बिश हुई। उन्होंने अपने सर से कपड़ा सरकाया तो उनकी रोशन रोशन आंखें मुझ पर मरकूज हो गईं। शाह साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाबा जी की बिस्तर की पालती जानिब ले गए। वो उनके कदमों में बैठ गए और इनके पांव दबाने लगे। बाबा जी की आंखों में तिलिस्मात के सारे चिराग रोशन थे। उनकी नजरें मुझे अपने अंदर उतरती हुई महसूस होने लगी और मेरे दिल के रास्तों पर जमी किरचियां पिघलने सी लगी। मेरी आंखें इनकी अकीदत के ख्याल से झुक गईं और मैं भी शाह साहब की तकलीद करते हुए उनके पांव दबाने लगा। बाबा जी के पांव इंतहाई नफीस थे। पांव की उंगलियां बराबर थीं। पैर आईने की तरह शफाफ नजर आते थे। रगों में दौड़ता हुआ गरम गरम लहू पारे की तरह रवान दिखाई देता था। इनके पैरों पर जब मैंने हाथ रखा तो यूं लगा जैसे किसी तपते हुए फौलाद पर इंसानी गोश्त की खाल चढ़ा दी गई है। उनके पैर दबाते हुए बड़ा अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। आज चाय नहीं पिलाओगे हमें? बाबा जी ने मुझे मुखातिब किया। जी सरकार, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर मैं अंदर गया। मुझे मालूम था कि चाची इस वक्त उठ पड़ती हैं और दूध बलो रही होती हैं। वो बावर्ची खाने में ही थीं। हवेली की बूढ़ी नौकरानी ओपलों को अंगीठी में डालकर फूंक मार रही थी और आग को दहका रही थी। चाची एक चौकी पर बैठी हुई दूध बलो रही थी। मुझे देखते ही चाची बोली, बिस्मिल्लाह पुत्र, खैर है? आज सवेरे सवेरे भूख लग गई है? नहीं चाची, वो बाबा जी चाय मांग रहे हैं। मैं सदके जाऊं, सरकार ने चाय मांगी है? लेकिन पुत्र, अभी तो भैंसों का ताजा दूध भी नहीं आया। रात के दूध को मैंने जाग लगा दी थी, अब क्या करूं? हमीदा, देख उधर कटोरे में दूध रखा हुआ है कि नहीं। बूढ़ी नौकरानी की आंखें आग सुलगाते हुए ओपलों की धुएं से सुर्ख हो रही थीं। अच्छा मालकानी जी, देखती हूँ। वो उठी और कटोरे को देखकर बोली, दूध का एक घूंट भी नहीं है। अच्छा तो फिर हमीद को डेरे पर भेज और इसे कहो कि भूरी भैंस का दूध धोकर ले आए।
जल्दी करो। हमीदा बाहर को लपकी और मैं भी वापस होने लगा तो चाची कहने लगी, पुत्र, बाबा जी को लस्सी में मक्खन डालकर क्यों नहीं देते? ये लो और सरकार से कहो कि ये ताज़ा लस्सी पी लें। चाची ने बड़े से प्याले में ताज़ा बनी हुई लस्सी में ताज़ा मक्खन का पेड़ा डालकर मुझे दिया। मैंने मेहमान खाने में पहुंचकर बाबा जी को सूरत हाल बताई तो वो मुस्कुराने लगे। मियाँ, हम ठंडी और बादी अशिया खा ही नहीं सकते, चाय बन जाए तो ले आना। ये सुनकर गाजी भी इसरार के पर्दों से बाहर निकल आया और बोला, सरकार, अगर इजाजत हो तो मैं पी लूं? तू कभी सुधर नहीं सकेगा गाजी। बाबा जी हंस दिए। कभी तू जलेबियां खाता है और कभी आइसक्रीम। जिस दिन तू पकड़ा गया उस दिन पिटेगा। बाबा जी सरकार, आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं है। गाजी ने मेरे हाथ से लस्सी का प्याला लिया और घूंट भरकर बोला, सवाद आ गया सरकार। शाहिद मियाँ, बाबा जी ने मुझे मुखातिब किया, हम जैसे जिन्नात ये छोटी छोटी अयाशियाँ करते रहते हैं, लेकिन हमें इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। हमारे लिए तुम्हारी दुनिया की ग़ज़ाएं जन्नत की ग़ज़ाओं जैसा दर्जा रखती हैं। हमें इनकी इश्तिहा बहुत तंग करती है। हाय, तुम्हें क्या बताऊं मियाँ, अल्लाह ने जब बनो इसराइल को मनो सलवा अता किया था तो उसकी लज्जत किस दर्जा कमाल को पहुंची हुई थी, मगर अफसोस उस बख्त कौम ने उस जन्नती ग़ज़ा को ठुकरा दिया। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जिन्नात भी मनोसलवा खाते थे। वो बड़े फख्र से हमें बताते थे कि मनोसलवा हासिल करने के लिए वो क्या क्या तरीके इख्तियार करते थे। मैं तुम्हें एक राज की बात बता दूं, उस मनोसलवा की एक झलक अरबों के खाने में भी पाई जाती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और सरजमीन को मनोसलवा की लज्जत से भी आशना किया था। क्या तुमने कभी अरबों के रिवायती खाने खाए हैं? मैंने इनकार में सर हिला दिया। नहीं खाए होंगे, अगर तुम खा भी लो तो हजम ना कर सकोगे। तुम आजकल के उन इंसानों में से हो जो खालिस ग़ज़ा नहीं खा सकते। बाबा जी कह रहे थे, ये चाय जो तुम यहाँ पीते हो इसमें किसी किस्म की लज्जत नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं, बड़ी सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद बताया करते थे कि फिरौनों के महलात में जो कहवा पकता था आज की दुनिया उसकी लज्जत से महरूम है। ये कहवा जड़ी बूटियों को शहद में घोल कर पकाया जाता और फिर ये मेहमानों को पीने के लिए दिया जाता था। फिरौन जिस पर मेहरबान होते ये कहवा उसको पिलाते थे। मेरी बड़ी सरकार साहब ईमान होने से पहले मुशरिक थे और वो एक फिरौन ज़ादी के इश्क में मुब्तला होकर उसके महल में रहते थे। ये दास्तान बड़ी रंगीन और दिलचस्प है मियाँ, कभी वक्त मिला तो हम तुम्हें सुनाएंगे। तुम दास्तान गो हो, तुम्हारे लिए ये दास्तान बड़ी अहम होगी। जुलेखा की शादी हो लेने दो, अगर तुमने हमारे एतमाद को ठेस ना पहुंचाई तो हम तुम्हें ये दास्तान जरूर सुनाएंगे। बाबा जी की बातों में इस कदर सहर और असर था कि मैं उनके कदमों में बैठ गया। सरकार, मुझे आप पर एतमाद है और मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, परसों रात के बाद हम तुम्हें अपने पीरो मुर्शिद की ये दास्तान सुनाएंगे। अब तुम जाओ और चाय ले आओ, हमीदा दूध ले आया है। मैं बावर्ची खाने में गया तो वाकई हमीदा वापस आ चुका था। चाची ने मुझे चाय बनाकर दी। मैंने बाबा जी को अपने हाथों से चाय पिलाई। ये बड़ा ही दिलचस्प तजुर्बा था। वो छोटी छोटी चुस्कियां भरने लगे। तुम्हारी चाची इसमें इलायची डाल देती तो ज्यादा लुत्फ आता, बाबा जी कहने लगे। बहरहाल ताज़ा और खालिस दूध में बनी हुई चाय का भी अपना ही लुत्फ है। बाबा जी चाय पी चुके तो मैं उनसे इजाजत लेकर शहर जाने की तैयारी में मसरूफ हो गया। रात तेजी से गुजर गई थी। मुझ पर रात भर जागने का जरा भी असर नहीं था। उस रोज मेरा पर्चा बहुत अच्छा हुआ। मैं उस रोज बहुत ज्यादा मुस्तरब था। रात को मुझे टहरी वाली सरकार से भी मिलना था और अगले रोज जुलेखा की शादी का भी बंदोबस्त करना था। शादी में सिर्फ घर के ही लोगों ने शरीक होना था। मैं जब वापस आया तो बड़े मलिक साहब को बहुत ज्यादा गमगीन पाया। उनके कंधे झुके हुए थे और वो एक दो रातों में ही बूढ़े हो गए थे। पुत्र, तुम भी मेरी मदद नहीं कर सके। मैं तो तुम्हें अपना हमदर्द समझता था। चाचा जी की बात सुनकर मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाकर खामोश खड़ा रहा। मेरा दिल चाहा कि ये जमीन फट जाए और मैं इसमें गर्क हो जाऊं। बेकसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं मुंह मोड़कर भाग गया। पुत्र, कब तक यूं ही भागते रहोगे? मुझे चाचा जी की आवाज सुनाई दी। मेरे पास उनकी किसी बात का जवाब नहीं था। मैं इन्हें क्या बताता
کہ میں خود کن حالات سے گزر رہا ہوں اور میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا۔ میں دیوڑی سے گزر رہا تھا کہ مجھے عقب سے زلیخا کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور وہ زنان خانے کی دہلیز پہ کھڑی تھی۔ شاہد، میرے لیے شہر سے گلاب کے پھول منگوا دینا۔ میں کسی ساکت شے کی طرح اس کو دیکھتا رہ گیا، اور یہ پھول کل میری تربت پر ڈال دینا اپنے ہاتھوں سے۔ زلیخا، میرے اندر رواں کرچیاں دوبارہ اکٹھی ہو کر میرے حلق میں پھنس گئیں اور میری رگت پہ زخم ہو گئی۔ کوئی بہت ہی اذیت سے میرے اندر چیخا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا اور دیوڑی میں بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ عقب سے زلیخا کی آواز میرا تعاقب کرتی رہی، شاہد، یہ پھول تو میری تربت پر ڈال دینا۔ میں حویلی سے بھاگتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا قبرستان کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ میرا پورا وجود زخموں سے چور چور تھا۔